Good morning, dear students. We are doing chapter number 22, financial statement with adjustments. And we have discussed all adjustment in this chapter. And today we will discuss next exercise question number 24. Okay, so please students open page number 22.100. Page number 22.100. Question number 24, back exercise, unsolved question. Okay. I am doing unsolved question from back exercise. Question number 24. The total of the balance sheet is 7,06,000. 7,06,000. बैलेंस शीट का टोटल गिवन है इस क्वेश्चन का. ठीक है, आप देख लो आपकी बुक में जो भी ये क्वेश्चन है. टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इज 7,06,000 फ्रॉम बैक एक्सरसाइज. ओपन कर लीजिए ये पेज नंबर. ओके. Given information from the following trial balance has been extracted from the books of Shri Santosh Kumar as follows. Given information, plant and machinery, furniture, capital account, household expenses. Household expenses means drawings, sales, loose tools, goodwill, opening stock, returns outward, discount, purchases, return inwards, wages, salaries, outstanding salaries, investments at 10% per annum. So students, this is a hidden adjustment. This is also given in your trial balance. Okay, you will calculate 10% interest on this investment. चाहिए आपके बाकी एडजस्टमेंट में गिवन हो या ना हो, आपको इसमें कैलकुलेट करना ही है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आगे गिवन ही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट 10%, देन यू विल कंपेयर दिस इंटरेस्ट विद एग्जैक्ट विद टोटल इंटरेस्ट. अगर कुछ इसमें डिफरेंसेस रहेंगे तो वो देखेंगे हम कि ये प्रीपेड या एक्रूड या क्या होगा ये. ठीक है, सॉरी एक्रूड होगा या रिसीव्ड इन एडवांस. देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, miscellaneous receipt, carriage inward, general expenses and insurance, advertisement expenses, postage, sundry debtors, B Bora, cash balance, बैंक एंड सस्पेंस अकाउंट. ओके, तो ये सब चीजें आपके पास गिवन है इन ट्रायल बैलेंस. सस्पेंस अकाउंट भी गिवन है इन दिस क्वेश्चन. ओके, so the following additional information is available. Stock given as stock on 31st March 2017 was 30,800. Then second adjustment is depreciation is to be charged on plant and machinery at 5% and furniture at 6%. Loose tools are revalued at 16,000. Then third adjustment is create a provision of 2% for discount on debtors. And fourth adjustment is salary of 2,000 paid to Shri B Bora, a temporary employee, stands debited to his personal account and it is corrected. Then fifth point is write off 1/5 of the advertisement expenses. You are prepared trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017 and balance sheet as at that date. Okay. First of all, we will make the first point, first account. This is a trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017. ओके, आप ये फॉर्मेट इसका जल्दी से बनाएं साथ साथ मेरे. तो करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ट्रेडिंग अकाउंट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आइटम particulars, amount in rupees, particulars, amount in rupees. This is the debit side and this is the credit side. To ओपनिंग स्टॉक. देखिए ओपनिंग स्टॉक आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, आपने अपने आप देख लेना है, आपने अपना ही फॉर्मेट यूज करना है. 20,000. यस. परचेजेस, purchases return outward also given, so we will deduct this return outward from the purchases. Purchases हैं आपके पास 2,12,000 and you will deduct purchase return और return outward, जो भी नेम आपका मेंशन है आप उसी नेम से इसमें यहाँ पर मेंशन करेंगे. रिटर्न आउटवर्ड. अमाउंट इज 4,000. 2,08,000. Okay, then
Next item, you will search direct expenses like wages, carriage inwards. अगर कुछ given है तो वो देख लेते हैं. Yes, wages भी given है आपके पास और carriage inwards भी given है. 2 wages. Wages amount is 1 lakh. Then to carriage inward 12,000. Okay. ठीक है. अब क्रेडिट साइड में देख लेते हैं सेल्स. देखिए सेल्स आपके पास गिवन है क्वेश्चन में. यस, सेल्स है 4,68,000. बाय सेल्स. Return inward also given, so you will deduct return inward from sales. This is the amount 8,000. 4,60,000. Okay, this is going to be आपकी. And closing stock is given in adjustment by closing stock. Adjustment में given है 30,800. Okay. Take the total and calculate the balance. Balance आपका आएगा डेबिट साइड में. अगर बैलेंस डेबिट साइड में आपका आएगा तो वो आपका हो जाएगा ग्रोस प्रॉफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका टोटल कर लो. 460 प्लस 3490, 4,90,800 एंड डिडक्ट ऑल दीज आइटम्स फ्रॉम द दिस टोटल. 4,90,000 में से इसको माइनस कर दो सारी आइटम्स को, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका 2 प्लस 3, 3,20, 20, 40, 3,40,000. आप इसमें से माइनस कर दो 490, 80 में से 3,40,000. 0,080, 9 minus 4, 5, 4 minus 3, 1. 1,50,800. Okay, 1,50,800. This is the gross profit. Carry down. Total same 4,90,800. Okay. This profit we will carry forward in profit and loss account by gross profit brought down 1,50,800. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अभी आगे देखते हैं. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो आइटम्स है वो आप कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ स्टार्टिंग से आप देखते जाओ. गुडविल, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न आउटवर्ड, डिस्काउंट. ओके, परचेजेस, परचेज रिटर्न, वेजेस, सैलरीज. ये स्टूडेंट सैलरीज गिवन है आपके पास. डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपका क्रेडिट साइड में है. तो बाय डिस्काउंट पहले आपकी जो आइटम मिली है मुझे ये आई है बाय 6,000 इन क्रेडिट. देन है सैलरीज, तो 2 सैलरीज. सैलरीज अमाउंट इज स्टूडेंट यहाँ एक एडजस्टमेंट आपके पास गिवन थी सैलरी से रिगार्डिंग. एडजस्टमेंट नंबर 4, सैलरी ऑफ 2,000 पेड टू श्री बी बोरा. इट मीन्स ये जो पे की है इसको बी बोरा को, अ टेम्परेरी एम्प्लॉय स्टैंड्स डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. ये इसके पर्सनल अकाउंट में हो गई है एंड इट इज टू बी करेक्टेड. इसको हमें अब करेक्ट करना है. तो बेटा आपको मैं बता दूं जो सैलरीज होती हैं वो किसी भी एम्प्लॉय के हम पर्सनल अकाउंट में कभी भी डेबिट नहीं करते. हम उसको एक जो कॉमन अकाउंट आपका होता है सैलरी अकाउंट उसी में करते हैं. अगर ये बाई चांस आपकी बी बोरा के अकाउंट में हुई है तो बी बोरा के अकाउंट से आपको निकाल के यहाँ पर ऐड करें. तो इसका जो ये एक इफेक्ट तो यही रहेगा कि आप इसको सैलरीज को यहाँ पर उस 2,000 की सैलरी को इसमें ऐड करोगे. ठीक है, तो सैलरीज आपके पास गिवन कितने की है 60,000 और आप यू विल ऐड सैलरी टू बी बोरा. $2,000 आप ऐड कर दो 62,000. राइट. ओके, नेक्स्ट देखेंगे आइटम क्या है आपके पास. आउटस्टैंडिंग सैलरीज आल्सो गिवन इन द ट्रायल बैलेंस.
तो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रायल बैलेंस भी गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सोचना है कि इसकी एक ही एडजस्टमेंट है, और एक ही एडजस्टमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं आएगी, वो अब कहाँ जाएगी, लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। आपको सिंगल आइटम सिंगल उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर ये एडजस्टमेंट में होती है तब आप एक बार इसको सैलरीज में ऐड करते हो और सेकंड टाइम आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करोगे। बट अगर दिस आइटम इज गिवन इन ओनली ट्रायल बैलेंस, यू विल शो ओनली इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करना है इसको। आगे देखिए इन्वेस्टमेंट गिवन है एट 10% पर एनम, बट इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, ठीक है। देन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके पास 300 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट 10% ऑन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट गिवन है 6000 से, तो कैलकुलेट कर लीजिए 6000 के ऊपर 10%, इट विल बी 600, यानी कि इंटरेस्ट तो बनता है 600 का। आपको यहाँ जो आउटर में दिखाना है वो 600 ही दिखाना है, बट जो आपका ट्रायल बैलेंस में है यानी कि जो रिसीव्ड है वो 300 है अभी भी, यानी कि कितना आपका पेंडिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग जो भी आप बोलते हो। तो यू विल ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, जो भी आपने रिसीव नहीं किया है आप उसको ऐड कर दोगे इसमें 300 से, ठीक है। जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस आप इसमें ऐड कर दोगे, आपने उसको 600 से ही शो करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं अब आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स मिसलेनियस रिसिप्ट्स। मिसलेनियस रिसिप्ट है आपकी, रिसिप्ट्स हैं ये भी क्रेडिट साइड में जाएंगे। बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स, ओके, अमाउंट इज 2000, ओके। नेक्स्ट आफ्टर मिसलेनियस रिसिप्ट्स कैरेज इनवर्ड हो गया हमारा, जनरल एक्सपेंसेस, यस जनरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस, टू जनरल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस, ये आपके पास गिवन है कितने से, 39,000 से, यस एज इट इज लिख दीजिए, इसकी कोई इसके रिगार्डिंग कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यस इससे इसके रिगार्डिंग हमारी एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, राइट ऑफ करना है आपको 1/5, इट मीन्स आप जस्ट 1/5 इसका कैलकुलेट करेंगे और वो आप यहाँ से चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ओके, यू विल कैलकुलेट 1/5 ऑफ द, आपके पास अमाउंट क्या गिवन है 15,000, आप 15,000 का 1/5 कैलकुलेट कर लीजिए 3,000, यू विल चार्ज 3,000 फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो पेंडिंग अमाउंट होगा ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो बैलेंस होगा वो आप शो करेंगे एसेट साइड में, इट मींस 12,000 यू विल शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जो पेंडिंग इसका होगा राइट ऑफ करेंगे हम उसको जस्ट बाय 3,000, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट आइटम पोस्टेज, पोस्टेज एज इट इज यू विल शो पोस्टेज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन डेबिट साइड, पोस्टेज आपका एक्सपेंस है 4,000 से, यस। नेक्स्ट डेटर्स बी बोरा, बी बोरा अभी ये एक एम्प्लॉई है, तो इसके इसमें वो चला गया था अमाउंट 2,000 से, तो आपने ये अमाउंट 2,000 जो है वो उसमें ऐड कर दिया और इसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसमें कुछ भी शो करके नहीं दिखाना है, ठीक है। देन देखेंगे कैश बैलेंस बैंक एंड देन है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो देखते हैं सस्पेंस अकाउंट का हम बाद में बताती हूँ मैं क्या करना है। तो अभी आपके पास सारी आइटम्स हो गई हैं, अब देखते हैं एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, हाँ यस डेप्रिसिएशन की आइटम्स है अभी, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में देख लीजिए क्या क्या है। डेप्रिसिएशन में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी का 5% कैलकुलेट करेंगे आप, फर्नीचर है you will calculate 6% on furniture and loose tools भी है, ये बाय 16,000 है, इसकी अमाउंट डायरेक्टली गिवन है, तो आप कैलकुलेट कर लो। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 5%, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख का 5% हो जाएगा 5,000, ओके। सेकेंड है फर्नीचर 6%, फर्नीचर आपके पास है 12%, 12 6 72, ये आपका हो जाएगा 720, ओके। एंड लूज टूल्स आपके पास है 16,000, एक मिनट इसका भी कुछ है,
लूज टूल्स आर रिवैल्यूड 16,000। ओके, एक मिनट, आपके पास लूज टूल्स ऊपर देखो पहले कितने से गिवन है। ओके 20,000, तो ये 16,000 से रिवैल्यूड हुए हैं, तो 4,000 से डिडक्ट हुआ है, तो वी विल शो 4,000। डिफरेंस लेना है आपको, वैल्यू बताई है उसकी, दोबारा से उसकी वैल्यू करके बताया है। पहले उसकी वैल्यू ट्रायल बैलेंस में 20,000 से शो हो रहा है, और आफ्टर देन एडजस्टमेंट में इसको 16,000 से शो किया है। इट मीन्स 4,000 से वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो डिक्रीज वाली वैल्यू डेप्रिसिएशन में आप शो करोगे। ठीक है, अब आप इसको ऐड करके यहाँ पर बाहर निकाल दो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 5 + 4 9 9720। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और एडजस्टमेंट अगर कोई है तो, यस, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 2% ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो यहाँ डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट हमें पे करना, अदरवाइज और कोई यहाँ पर बैड डेट्स वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप डायरेक्टली जो भी डेटर्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है उसके ऊपर आप यू विल कैलकुलेट दिस अमाउंट 2%। ओके, डेटर्स आपके पास कितने से गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, देख लेते हैं। 56,000, यस 56,000 है ना, तो यू विल कैलकुलेट 2% ऑन 56,000। This is the 1120. You two provision for discount on debtors 1120। ठीक है, हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन अब आपका, आई थिंक सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी आइटम्स हमने फिल कर दी हैं, और अब आप इसका टोटल करके यहाँ पर बैलेंस देखेंगे कि किस साइड आता है। अगर बैलेंस आपका इधर आता है तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आता है तो ये आपका नेट लॉस होगा। तो देखते हैं, टोटल कर लेते हैं इसका। 1,50,000 प्लस 56, 58, 58, 59, 59, 400, 1,59,400 इसका टोटल आ जाएगा। ओके, आप ये वाली आइटम्स का एक बार टोटल कर लो और उसको उसमें से डिडक्ट करके देख लो कि क्या आपका आंसर आएगा। मैं रफ में कर लेती हूँ फटाफट से। ये स्टूडेंट्स, इस साइड आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट, टोटल लिखेंगे 1,59,400। ठीक है, उसमें से लेस करके मैंने सीधा ही निकाल दिया है, ये आया है 40,560, 40,560। यस, हमारा करेक्ट आंसर, ये मैच कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट 40,560। ओके, तो दिस इज योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी हम करते हैं इसमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी मैं इसकी आपको बनवा रही हूँ। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं साथ साथ। बैलेंस शीट as at 31st March 2017. This is the liability side. Amount in rupees. Assets. Amount in rupees. Okay.
तो स्टार्टिंग से देखेंगे, फर्स्ट आइटम है आपके पास गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1 लाख, और डिडक्ट कर दीजिए इसमें से डेप्रिसिएशन लेस, डेप्रिसिएशन था 5%, 5000, 95,000। सेकेंड आइटम है आपके पास फर्नीचर। फर्नीचर आपके पास गिवन है 12,000, 720 आपका पास डेप्रिसिएशन है, डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द 12,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 11,200। ठीक है, इसके बाद देखिए कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट आपके इस साइड आएंगे। कैपिटल में आपके पास है 1,91,000। यू विल ऐड नेट प्रॉफिट इन द कैपिटल। आपका नेट प्रॉफिट कितने से आया है? 40,560। 40,560 आंसर में गिवन है 0651 9 + 4 13 1 2 2,31,560 ऐड कर दिया। अब आपके पास हाउस होल्ड एक्सपेंसिस गिवन है। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस मतलब ड्रॉइंग्स। यू विल डिडक्ट दिस ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। यहां से आप माइनस करोगे इसको 16,000 को, तो 16,000 को माइनस कर दीजिए 2 लाख, ये 15 आ जाएगा 15,560। ये कैपिटल आ गई है आपकी। ओके, आफ्टर देन है आपके पास सेल्स हो गया। लूज टूल्स, लूज टूल्स, लूज टूल्स की आपकी वैल्यू दी हुई थी ना 16,000। लूज टूल्स 20,000 माइनस डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ जो भी हुआ है 4,000 से, ये आ जाएगा आपके पास 16,000। देन है लूज टूल्स के बाद गुडविल। तो गुडविल से रिलेटेड कोई आपके पास एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप एज इट इज इसको शो करेंगे। गुडविल, गुडविल अमाउंट इज 10,000। ओपनिंग स्टॉक हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स आउटवर्ड्स डिस्काउंट हो गया, परचेजेस रिटर्न इनवर्ड्स परचेज, सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप लेंगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स गिवन है आपके पास 6,000, और इसमें क्योंकि आपने इंटरेस्ट निकाला था तो एक्रियूड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हुआ था ना, तो एक्रियूड इंटरेस्ट भी आपका इसमें आप चाहो तो इसमें ऐड करके ही दिखा सकते हो, या फिर इसके साथ आप ऐसे ही एक्रियूड इंटरेस्ट भी दिखा सकते हो 300। ओके, आफ्टर देन देखते हैं गिवन है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पास गिवन है 24,000 से। सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000 लाइबिलिटी है आपके पास ये। देन है मिसलेनियस रिसिप्ट, कैरेज इनवर्ड, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। यस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की एक एडजस्टमेंट थी जिसमें 1/3 पोर्शन, 1/5 पोर्शन आपको राइट ऑफ करना था जो आपने चार्ज किया फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस यू विल शो इन द एसेट साइड। ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बैलेंस कितना बचा? 15,000 माइनस 3,000, 12,000। ठीक है, ओके। देन पोस्टेज, सन्ड्री डेटर्स। देन डेटर्स हैं, डेटर्स में से आपने डिस्काउंट लेस किया था। डेटर्स 56,000 माइनस प्रोविजन आपने बनाया है, डिस्काउंट प्रोविजन है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कितने से बना था आपका? डेटर्स में से आप वो माइनस कर देंगे, 1120 का हमने बनाया था, और अभी आपका लेस हो जाएगा 1120, 1120 आप माइनस कर दो, यह आ जाएगा 880, यस 54,880। ठीक है, डेटर्स भी हो गया आपका। आफ्टर देन देखते हैं डेटर्स के बाद
कैश बैलेंस गिवन है, कैश बैलेंस जो है वो है 14,000 से। कैश 14,000। बी बोरा नहीं लेना आपको यहाँ पर, बी बोरा आपने यही 2,000 जो है इसमें से एक तरह से माइनस हो जाएंगे, तो ये आइटम आपकी जीरो हो जाएगी, बिकॉज इसी को आपने किसमें ऐड कर दिया था, सैलरीज में। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक बार 2,000 सैलरीज में ऐड हुआ है और सेकेंडली बी बोरा में से माइनस हो गया है, तो बी बोरा में से माइनस हुआ तो ये यहाँ पर ये आइटम जीरो की हो जाएगी। देन है ये कैश बैलेंस आपने शो कर दिया। देन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस आपके पास क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। क्रेडिट साइड में शो होने का मतलब होता है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये नेगेटिव बैलेंस है बैंक का। ठीक है, तो आप यहाँ इसको दिखाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने से आई आपके पास, 3200। और लास्ट में जो आपके पास सस्पेंस अकाउंट है वो भी आपका क्रेडिट साइड में ही शो हो रहा है, इसको भी आप सस्पेंस अकाउंट को यहीं पर एज इट शो कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट एज 2500। क्रेडिट बैलेंस है तो यू विल शो इन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, और अब देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया आपका। एक आइटम आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ रुकी हुई थी। यस, आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने आपको बोला था कि इसकी सिंगल ट्रीटमेंट है और ये आपकी लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये आपके पास कितने से है, ये 5,000 से। ओके, आई थिंक हो गया ये सारा कुछ कंप्लीट। एक बार आप दोनों का टोटल करके चेक कर लो, मैं भी इधर से टोटल कर रही हूँ, आप दोनों का टोटल करो और देखो कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। यस, लाइबिलिटी साइड आपका टोटल आ रहा है 2,50,000, 2,50,000 ये आया है, 2,50,260। एक बार एसेट्स का भी टोटल कर लेते हैं। यस, ये भी आ रहा है आपका 2,50,260। तो ये दोनों साइड जब आपकी इक्वल है इट मींस ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है, तो ये आपका आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिए ना, इसका रीजन यही है कि अब कोई भी एडजस्टमेंट है तो आपने इसी तरह से इसको यूज करके आगे के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस इन प्रैक्टिकल इन बैक एक्सरसाइज, बट आपके पास कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी गिवन है। ठीक है, आप एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें से। तो आज आपका जो होमवर्क रहेगा 24, 25 ये तो आपका डन है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो एडजस्टमेंट्स थी वो सारी मैंने इसमें कवर कर दी है। प्लस यू विल डू टुडे क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28। 28 तक के आज आप क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है, अगर कुछ भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स आती है, इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ क्वेरीज एंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप। ओके, एंड कुछ अगर इलस्ट्रेशन भी अगर 1-2 पेंडिंग है तो वो भी आप प्रैक्टिस नोटबुक पे इसको देख लेना करके। एडजस्टमेंट आपकी सारी डन है और आज मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाया है ताकि आप इजीली अब आगे के क्वेश्चन अपने कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।